नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल के लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस से 2 दिनों में 2 लोगों की मौत, कुल मौत पहुंची 6। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में मंगलवार सुबह ब्लैक फंगस से एक और मरीज की मौत हो गई। इसे लेकर कल और आज 2 दिनों में ब्लैक फंगस से 2 मरीजों की मौत हो गई है। इसके साथ ही उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो चुकी है। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक ने बताया कि अब तक जिन मरीजों की मौत हुई है अथवा जो मरीज ब्लैक फंगस से पीड़ित थे, इनमें सभी या तो कोरोना से संक्रमित है अथवा कोरोना से ठीक हुए हैं। साथ ही सभी के फेफड़े अधिक संक्रमित पाए गए हैं। साथ ही इनका ब्लड शुगर हाई था। इसके अलावा वे कई जटिल बीमारी से ग्रसित थे। দেখুন, আমাদের যেটা মনে হচ্ছে এই কোভিড আবহে যে এখন মিউকরমাইকোসিসের কেসের সংখ্যা বাড়ছে, তাদের আমরা যেটুকু অ্যানালিসিস করেছি যে এনাদের প্রত্যেকেরই হয় কোভিড ছিল বা কোভিড থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন, মানে কোভিড নেগেটিভ হওয়ার দিক থেকে বিচার করে, এবং তাদের বেশিরভাগেরই লাংস অত্যন্ত বেশিভাবে সংক্রমিত এবং ড্যামেজ ছিল। এর পাশাপাশি তাদের প্রত্যেকের ব্লাড সুগার হাই ছিল এবং ডায়াবেটিস আনকন্ট্রোল ছিল, সুগার লেভেল নিয়ন্ত্রণে ছিল না। তার মধ্যে কারুর এরকম কোমরবিডিটি ছিল যে বাইল্যাটারাল রেনাল ট্রান্সপ্লান্ট হয়েছে, দীর্ঘকাল আইসিইউতে থেকেছেন, বয়স একটা ফ্যাক্টর। তো আমাদের যেটা মনে হচ্ছে যে আমরা স্বাভাবিকভাবে জানি যে মিউকরমাইকোসিস হলে তাতে মৃত্যুর হার 50 থেকে 60% মধ্যে থাকে, কিন্তু কোভিড আবহে যে মিউকরমাইকোসিস কেসগুলো আমাদের চোখের সামনে আসছে, তাদের কিন্তু প্রত্যেকের রাইনো অরবাইটো সেরিব্রাল, মানে নাক, চোখ এবং ব্রেন ইনভলভ করা মিউকরমাইকোসিস, এবং খুব দ্রুত নাক থেকে ব্রেনে চোখ হয়ে ছড়াচ্ছে। তার সাথে স্কিন ইনভলভমেন্ট বা ইত্যাদি ইত্যাদি থাকতে পারে, এবং তাদের লাংস খুব সিভিয়ারলি ড্যামেজড। আমাদের এখন যেটা মনে হচ্ছে যে হয়তো রাইনো অরবাইটো সেরিব্রাল মিউকরমাইকোসিস, তার সঙ্গে যদি এত কোমরবিডিটি এবং লাংসে ড্যামেজ এতটা থাকে, হয়তো মৃত্যুর হার আরও অনেক বেশি বলেই মনে হচ্ছে, সেটা হওয়ার কথা। তো আমরা যেটা করছি, আমরা কিন্তু মিউকরমাইকোসিস নিয়ে কমিটি হয়েছে, মিউকরমাইকোসিসের কীভাবে আরও বেটার ম্যানেজমেন্ট হয় তার জন্য আমরা নিয়মিত বসছি, এবং ডেথ অডিটও হচ্ছে। কালকেও আরেকটা মিটিং এবং অ্যাওয়ারনেস মিউকরমাইকোসিস নিয়ে হবে। আমাদের এখন মেন চ্যালেঞ্জ হচ্ছে মিউকরমাইকোসিস প্রিভেন্ট করা, এবং তার জন্যেই আমরা সকল জনগণকে বলছি যে কোভিড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বিহেভিয়ার বজায় রাখুন যাতে কোভিড না হয়, এবং এই সময় কোমরবিডিটিকে কন্ট্রোলে রাখুন। যার কিডনির সমস্যা, রেনাল ফাংশন ঠিক রাখার জন্য যা যা করার করণীয় করুন, চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে। ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখুন। লাংসের ক্ষেত্রে আপনারা চেস্ট ফিজিশিয়ানের পরামর্শ নিন, দরকার হলে চেস্ট ফিজিওথেরাপি করুন। প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর ক্ষেত্রে। सिलीगुड़ी में नशीली दवाओं के अवैध बिक्री और भंडारण के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी, एक गिरफ्तार। युवा पीढ़ी को बचाने के लिए सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस नशा विरोधी अभियान लगातार रूप से चला रही है। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस शराब की अवैध बिक्री और भंडारण के साथ ही नशीली पदार्थों की अवैध बिक्री पर नकेल कसना शुरू कर दी है और लगातार रूप से अभियान चला रही है। इस बीच सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट की भक्तिनगर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कल रात डॉन बॉस्को स्कूल के नजदीक एक दवा दुकान पर छापेमारी की। इस बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दवा दुकान में अवैध रूप से काफी मात्रा में कफ सिरप और नशीली दवाओं की गोलियां रखी हुई है। मिली जानकारी के आधार पर भक्तिनगर थाने की पुलिस की टीम ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस को सफलता हाथ लगी। पुलिस ने दवाई दुकान में अवैध रूप से रखे कफ सिरप और नशीली पदार्थ बरामद किया। इस घटना में पुलिस ने दवा दुकान के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। उक्त आरोपी का नाम पंकज शर्मा बताया जा रहा है।
इस बीच पुलिस को शक है कि दवा दुकान से कफ सिरप और नशीली दवाओं की तस्करी सिलीगुड़ी के अलग अलग हिस्सों में हो सकती है और वहां से युवाओं और युवा पीढ़ियों के हाथ में चला जाता है। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के कमिश्नर गौरव शर्मा ने कहा कि सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ड्रग्स विरोधी अभियान लगातार चलाएगी और इस बीच आज आरोपी को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। सेवा सप्ताह पर भाजपा विधायक ने दिव्यांगों को दिया सहायक उपकरण। केंद्र में भाजपा की सरकार के 7 साल पूरे होने के अवसर पर भाजपा की ओर से देश भर में आयोजित हो रही सेवा सप्ताह के अवसर पर मंगलवार को सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने दिव्यांग लोगों को सहायक उपकरण प्रदान किया। घोष ने आज शहर के गुरुंग बस्ती इलाके के झुग्गी व बस्तियों में रहने वाले दिव्यांगों को व्हील चेयर समेत अन्य सहायक उपकरण प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए पूरे राज्य में लॉकडाउन चल रहा है, लिहाजा पार्टी की ओर से आयोजित सेवा सप्ताह का समय बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने सभी लोगों को एकजुट होकर कोरोना महामारी काल में गरीबों की सेवा में आगे आने का आह्वान किया। আপনারা প্রত্যেকেই জানেন যে এনডিএ সরকারের সপ্তম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আমরা এক সপ্তাহের সেবা সপ্তাহের কাজ করেছি, কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের রাজ্যে পার্শিয়াল লকডাউন বা বিধিনিষেধ আরোপ করে যে অবস্থা তৈরি হয়েছে সেই অবস্থার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সেবা সপ্তাহটাকে আরেকটু আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। ফলে তারই কাজ আমরা চলছে। আমরা স্যাফরন কেয়ার বা গৌরিক সেবা নামে এই কাজ আমাদের জেলার মধ্যে আমরা করে চলেছি, অন্যান্য রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে। সেবা এমন একটা জিনিস যা আপনার মনকে উৎফুল্ল করে এবং তার পাশাপাশি আপনি যে সমাজের পাশে আছেন সেটা সমাজের প্রতিটি কোনায় অন্তত প্রত্যেকটি মানুষকে একদিকে যেরকম উৎসাহিত করে, প্লাস যারা এই সেবা সপ্তাহে সহযোগিতা পাচ্ছেন হয়তো ক্ষুদ্র সেই সহযোগিতা, কিন্তু সেই ক্ষুদ্র সহযোগিতাও তাদের মুখে হাসি ফোটায়। আজকে আমরা এখানে আপনারা দেখলেন যে একটি বাচ্চা ছেলেকে সামান্য একটি হুইল চেয়ার পেয়ে সে কতখানি খুশি হলো তার মুখের অভিব্যক্তিতে, তা আমরা কিন্তু প্রত্যেকে দেখতে পেলাম। একজন ভদ্রমহিলাকে আমরা ব্লাইন্ড স্টিক, তিনি চোখে দেখতে পান না, তাকে সেটা আমরা দিলাম। এগুলো বড় বিষয় না, এগুলো খুবই সামান্য বিষয়, এগুলো বলারও বিষয় না, কিন্তু এইগুলো করার মধ্যে দিয়ে শুধু এইটুকু বার্তা আমরা দিতে চাই যে ভারতীয় জনতা পার্টি তারা মানুষের পাশে সর্বদা আছে এবং থাকবে। মানুষকে সেবা করাটাই হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টির কাজ। সেবাই পরম ধর্ম, অর্থাৎ সেবা করাটাই হচ্ছে সবথেকে বড় ধর্ম। সেই ধর্মের কাজটা আমরা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আজকে অনেকে দেখবেন যে নির্বাচনী সভায় অনেক বড় বড় কথা বলেন, বিজ্ঞাপন দেন, কিন্তু বাস্তবে কাজ সেই করে দেখায় যে আসলে কাজের মানুষ। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গতকাল রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে, দেশের উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দিয়েছেন, বলেছেন নভেম্বর পর্যন্ত ফ্রি রেশন এবং 21 তারিখ থেকে 18 বছরের ঊর্ধ্বে সবাইকে ভ্যাকসিন বিনামূল্যে। सीतलकुची गोलीकांड, सीआईडी की फोरेंसिक बैलिस्टिक टीम मतदान केंद्र पहुंचकर की तहकीकात। 10 अप्रैल को मतदान केंद्र में सीआईएसएफ की फायरिंग में 4 लोगों की हुई थी मौत। सीआईडी की फोरेंसिक बैलिस्टिक टीम की 3 सदस्यीय टीम ने विधानसभा चुनाव के तहत मतदान के दिन सीआईएसएफ जवानों द्वारा मतदान केंद्र में हुई फायरिंग की घटना की जांच करने सीतलकुची विधानसभा क्षेत्र के 126 नंबर बूथ स्थित मतदान केंद्र पहुंची। फोरेंसिक टीम की बैलिस्टिक टीम के अधिकारियों ने करीब 2.5 घंटे तक मौके पर घटना की जांच करते रहे। वे लोग मतदान केंद्र पहुंचकर ब्लैक बोर्ड पर गोलियों के निशान की पहचान की। सीआईडी अधिकारी दरवाजे में जिस हिस्से पर गोलियों के निशान थे वहां एक खास तरह के केमिकल का इस्तेमाल करते दिखे। उन्होंने गोली के निशान से रिबन से नापकर यह पता लगाने की कोशिश की कि किस तरह की अग्निअस्त्रों को दूर से ही दागा गया था। इसके बाद जांच अधिकारियों ने बूथ पर ताला लगा दिया और बिना अनुमति के प्रवेश पर रोक लगाने वाली नोटिस टांग दी। पत्रकारों ने बार बार जांच अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि वे समाचार के माध्यम से बताने वाले लोग नहीं है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के दिन 10 अप्रैल को सीतलकुची के बूथ नंबर 5/126 पर सीआईएसएफ द्वारा की गई फायरिंग में हमीदुल मियां, समीउल मियां, मुनरुल मियां और नूर आलम की मौत हो गई थी,
चारों की मौत के बाद सीआईएसएफ की ओर से माथाभंगा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। बाद में सीआईएसएफ के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई। इस घटना से राज्य की राजनीति में हड़कंप मच गया। फिर 14 अप्रैल को ममता बनर्जी माथाभंगा आई और पीड़ितों के परिवार वालों से मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि सत्ता में लौटने के बाद पूरी घटना की सीआईडी जांच की जाएगी। सत्ता में लौटने के बाद सीआईडी ने जांच शुरू की। इससे पहले सीआईडी के अधिकारियों ने मौके का दौरा भी किया। सुकून देने वाली खबर, देश में 63 दिनों के बाद कम आए कोरोना केसेस। बीते 24 घंटों में 2123 लोगों ने गंवाई जान। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर ढलान की ओर है। तेजी से कोविड संक्रमण के मामले घट रहे हैं। 63 दिनों के बाद 1 लाख से कम कोरोना वायरस के मामले सामने आए। वहीं बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 86,498 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 2123 लोगों की मौत हो गई। पिछले काफी दिनों से संक्रमित होने वाले लोगों की तुलना में ठीक होने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा दर्ज की जा रही है। ऐसे में तेजी से सक्रिय मामलों की संख्या घट रही है। देश में करीब 13 लाख सक्रिय मामले रह गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में संक्रमण से 1,82,282 मरीज ठीक हुए। इसके बाद कुल स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 2,73,41,462 पहुंच चुकी है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वो भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे, डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुडी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है?
तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रेड वॉलंटियर्स के सदस्यों ने टोटो को किया सैनिटाइज। रेड वॉलंटियर्स के सदस्यों ने मंगलवार को उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज शहर के विभिन्न सड़कों पर यातायात करने वाले टोटो को सैनिटाइज किया। संगठन के सदस्यों ने बताया कि कोरोना काल में लोगों की आवाजाही में काफी संख्या में टोटो का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रतिदिन काफी संख्या में लोग टोटो से आवाजाही करते हैं। ऐसे में टोटो के जरिए संक्रमण फैलने की संभावना अधिक रहती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए संगठन की ओर से टोटो को सैनिटाइज किया गया। दूसरी ओर टोटो सैनिटाइज किए जाने से चालक काफी खुश दिखे। इस अवसर पर DYFI उत्तर लोकल कमेटी के अध्यक्ष सुजय शाह, DYFI नेता ओनैन दत्ता और अन्य। আজকে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে কালিয়াগঞ্জ শহরে যত টোটো, বিশেষ করে টোটো এবং অন্যান্য যানবাহনের ক্ষেত্রেও আমরা সেই টোটোগুলোকে স্যানিটাইজ করে দেব। তার কারণ একটা টোটোতে একের পর এক মানুষ উঠতে থাকেন এবং যে মানুষটা টোটোতে উঠছেন সেই মানুষটা হয়তো নিজেও জানেন না তার হচ্ছে করোনা এফেক্টেড। সেই ড্রপলেটটা টোটোর হাতলে বা টোটোর সিটে লেগে থাকছে। সেই টোটোতে অন্য আরেকজন মানুষ যখন উঠছেন সে অজান্তেই তিনি করোনা এফেক্টেড হয়ে যাচ্ছেন। ওই জন্য আজকে আমরা রেড ভলেন্টিয়ার কালিয়াগঞ্জ উত্তর লোকালের পক্ষ থেকে আমরা কালিয়াগঞ্জের টোটো এবং অন্যান্য যানবাহনকে আমরা স্যানিটাইজ করছি। पश्चिम बंगाल में कहर बनकर टूटी है आकाशीय बिजली। 3 जिलों में 26 लोगों की हुई मौत। PM ने मुआवजे की घोषणा। पश्चिम बंगाल में एक दिन में आकाशीय बिजली गिरने से कम 26 लोगों की मौत हो गई। सोमवार दोपहर से शाम के बीच में दक्षिण बंगाल में आंधी के साथ बारिश हुई और लगातार बिजली कड़की। ऐसे में जो लोग घर से बाहर थे, बिजली गिरने से उनमें से बहुतों की मौत हो गई। पूर्वी मिदनापुर और बांकुरा में 2 लोगों की मौत हुई, जबकि झारखंड के रामगढ़ जिले के वेस्ट बोकोरो OP क्षेत्र में भी आकाशीय बिजली गिरने से 3 युवकों की मौत हो गई। सिर्फ हुगली जिले में ही 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि मुर्शिदाबाद जिले में 9 लोगों की मौत हुई है और पश्चिम मिदनापुर जिले में 2 लोगों की मौत हुई है। हावड़ा जिले में भी बिजली गिरने से 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई। PM मोदी ने इस हादसे में मरने वाले लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। PM मोदी ने ट्वीट करके मरने वालों के प्रति संवेदना जताई और मुआवजे देने की घोषणा की। अब बंगाल के बाहर दम भरेगी तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी। अगले साल होने वाले यूपी, पंजाब और उत्तराखंड चुनाव में TMC उतारेगी अपने उम्मीदवार। पार्टी के नाम बदलने पर भी बन रही है रणनीति। बंगाल चुनाव में सीधे मोदी शाह से टक्कर लेने के बाद ममता बनर्जी अब TMC को देशव्यापी कलेवर देने में जुट गई है। इसको लेकर पार्टी के भीतर से TMC के नाम में भी बदलाव करने का सुझाव दिया गया। सूत्रों की माने तो नाम को लेकर काम भी शुरू हो गया। TMC के आगे या पीछे कुछ ऐसे जोड़ने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू हो गई है, जिसमें अखंड भारत की आत्मा झलकेगी। यूपी में खास तौर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और रणनीतिकार सतीश चंद्र मिश्रा के साथ भी पार्टी संपर्क बनाई हुई है। TMC सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में होने वाले चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके लिए अभी से तैयारी भी शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में TMC ने संपर्क साधना भी शुरू कर दिया। मरणासन हो चुकी बहुजन समाज पार्टी के कई नेता उनके संपर्क में है। सूत्रों की माने तो मायावती के बेहद करीबी सतीश चंद्र मिश्रा से भी उनका संपर्क बना हुआ है। हालांकि अभी यहां स्पष्ट नहीं हुआ है कि TMC इन राज्यों में अपने सहयोगी की तलाश करेगा या फिर अकेली ही चुनाव लड़ेगी।
टीएमसी की एक बड़े नेता का कहना है कि हमारी पहली प्राथमिकता इन राज्यों में जड़ जमाने की है, लिहाजा अगर हमें लगेगा कि सहयोगी के साथ चुनाव लड़कर हम सत्तासीन पार्टी को चुनौती दे सकते हैं तो दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन से बिल्कुल भी ऐतराज नहीं हो। पीएम मोदी के फ्री वैक्सीनेशन पर अब शुरू हुआ घमासान। ममता बनर्जी ने कहा, काश पहले जागते तो बेहतर होता। देश में जारी कोरोना संकट के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार की शाम 5 बजे नागरिकों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने योग दिवस यानी 21 जून से 18 साल से अधिक उम्र वाले सारे नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का ऐलान किया। पीएम मोदी के फैसले पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर सभी के फ्री वैक्सीनेशन के ऐलान पर सवाल उठाया। वहीं पीएम मोदी पर कोरोना संकट से निपटने में फेल होने के आरोप भी लगाए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन के बाद 2 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में ममता बनर्जी ने लिखा, फरवरी महीने में मैं पीएम नरेंद्र मोदी को सभी लोगों को फ्री में वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए खत लिख रही थी। आखिरकार 4 महीने के इंतजार और चौतरफा दबाव के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने उनकी मांग पर सकारात्मक कदम उठाया। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को दी गई कोरोना वैक्सीन। अलीपुरद्वार जिले के चीलपाता इलाके के पर्यटन व्यवसायियों को कोरोना वैक्सीन दी गई। अलीपुरद्वार जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से सोमवार को अलीपुरद्वार के बाबुरहाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चीलपाता क्षेत्र के होम स्टे मालिकों, लॉज मालिकों, लॉज कर्मचारियों, जिप्सी चालकों, गाइड और पर्यटन उद्योग से जुड़े सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन दी गई। इससे पहले चिलपाता इको टूरिज्म की ओर से चिलपाता क्षेत्र के विभिन्न रिसोर्ट्स और होम स्टे को सैनिटाइज किया गया था। चिलपाता पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों ने बताया कि पर्यटकों की सुविधा के लिए ये सब कदम उठाया जा रहा है। কয়েকদিন আগে প্রশাসনের কাছে আমাদের চিলাপাতা ইকো ট্যুরিজম সোসাইটির পক্ষ থেকে ভ্যাকসিনের জন্য লিস্ট পাঠিয়েছিলাম। তো প্রশাসন অতি শীঘ্রই আমাদের 2-4 দিনের মধ্যে ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আজকে আমাদের লজ, হোমস্টে, জিপসি ড্রাইভার, গাইড সবাই আর ভ্যাকসিনেশন হয়ে গেছে। আমরা এখন সুরক্ষিত আছি। এখন পর্যটকদের কাছে আমার আবেদন যে আপনারা চিলাপাতায় নিশ্চিন্তে আসতে পারেন। করোনার ভ্যাকসিন আমাদের সবার হয়ে গেছে। আর প্রশাসনকে আমরা বহুত বহুত ধন্যবাদ জানাই যে আমাদের উদ্যোগটাকে আরও তাড়াতাড়ি নেওয়ার জন্য। আমরা চিলাপাতা ইকো ট্যুরিজম সোসাইটির পক্ষ থেকে সরকারের কাছে, জেলা প্রশাসনের কাছে আমরা আবেদন করেছিলাম যে পর্যটনের সাথে যুক্ত যারা সমস্ত স্টেক হোল্ডারদের যাতে গুরুত্ব দিয়ে তাদেরকে যাতে ভ্যাকসিনেশনের উদ্যোগটা সরকার নেয়। এটা আমরা অনেক দিন ধরে বলে আসছিলাম। তো প্রায় 7-8 দিন বাদে অবশেষে আজকে সেই ভ্যাকসিনেশন হলো। সুষ্ঠুভাবেই হয়েছে। প্রথমে একটু ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছিল, বাট সুষ্ঠুভাবেই সেটা সম্পন্ন হয়েছে। এই জন্য জেলা প্রশাসন এবং রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। এবং চিলাপাতা অবশেষে সুরক্ষিত এবং চিলাপাতা যে ট্যুরিজমের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছে। এর আগে আমরা স্যানিটাইজেশন প্রোগ্রাম আমরাই প্রথম করি এবং আজকে আমরা নিজেরা নিজেদের ভ্যাকসিনেটেড করে দিতে পারলাম। এটাই আমরা সবাইকে জানাতে চাই এখন সুরক্ষিত চিলাপাতা আপনারা আসতে পারেন। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।